So, good morning, everyone. Welcome to Community Reading Sunday by the Bibliophile family. Today, we will be discussing chapter 11 and 12 from the book Art of Habits by Gauranga Das ji. I hope I'm audible and my slide is visible to you all. It's a beautiful Sunday morning, and I'm grateful that we all are here. And I hope this session will enrich and enlighten a little bit for all of us. So this session was scheduled to be taken by Sanjay sir, but unfortunately he had travel plans and he's out of network. So he was kind enough to share the presentation with me, and we will take the support of the presentation and we'll begin the session. So without further ado, let's begin. So as you all know, the chapter first consists of a story and then a lesson behind it. So there was a farmer, धोबी, a washerman. उसका नाम था निरंजन, and he had his donkey with him, and he used to earn. Donkey was his main support for earning. So it's a beautiful slide, but I'll start with the story. So Niranjan was a dhobi, and his donkey was his support companion, because as you all know, a washerman has a donkey with him, and obviously he was with him for a long time, so obviously he was getting old. So one day what happened was that the donkey, they were traveling and the donkey fell into a well, and the Niranjan tried a lot to rescue him and to push him out, and but the well was very deep. It was 50 feet deep, so he was not able to take him out. तो बाकी आसपास के लोगों ने बोला कि जाने दो, इतना बूढ़ा हो गया है डोंकी, और अब उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई है, एंड द वेल अभी भरने वाला है, सो वेल इज अबाउट टू बी क्लोज्ड, वी विल बी क्लोजिंग इट मैन्युअली. तो वो सारा मड और पत्थर डाल के वो वेल को क्लोज करने वाले थे. सो एवरीवन कन्विंस्ड हिम in the village that the well will be now. The donkey let him remain there, and will put all the mud and dirt on him and close the well along with the donkey. So I hope you are getting कि वो उसको वो eventually वो मर जाता. तो this was the plan, and obviously the धोबी was not very happy about it, but he was helpless as well कि मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, निकल तो बाहर रहा नहीं है वो. So they started putting the all the dirt and uh, mud in the well, and he understood, donkey understood that what is happening. So he started crying louder and louder, and obviously he was helpless, and he started to bark very loudly. And eventually what happened was everyone started with a shovel, and even then Niranjan also prayed to God, prayed to Almighty, and begged for forgiveness. Ki, whatever I'm doing, please forgive me. And then he started with shoveling the mud away, dirt into the well. And then after some time, the donkey stopped crying as he was crying so loudly. So villagers were curious, and then they saw in the well, उन्होंने नीचे ऐसे देखा. So what was happening was, as the dirt was put in the well, donkey was shaking off the dirt, and because the dirt was keeping up enough, so he with the help of that dirt, he pushed himself up. तो वो climb करने लग गया dirt के ऊपर. So and eventually they villagers continued to shovel the dirt, and he came back. Donkey came back to him. So very different kind of story, and usually in life अगर कुछ ऐसा होता है, like it was life and death situation for him, and but he still maintained his
the donkey maintained his calm and then he came out. So this is analogous to the cycle of material life. So cycle of material life is dirt on us. For example, dirt like defeat and this defeat and failure. All these things are displeasure. These things are dirt in the cycle of material life, and we have to just shake it off and move ahead. So the lesson is that the donkey is the trick of getting out of the well of fear of failure. So this is what usually happens, and I was very when I first read this book, I was very intrigued by the term fear of failure, and we should like Gauranga Das is telling us that we should fear को हटा के and we should brave against all odds and move ahead in life. And the dirt is all the things that bad things that are happening in our life, and we should shake that off and move ahead. So the lesson is attitude defines your altitude. So attitude क्या है आपका इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में आप किस तरह से उसको जीते हैं और उसको कैसे फेस करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट द थिंग्स विल कम इन लाइफ एंड इट्स योर चॉइस हाउ यू आर एक्टिंग इन दैट सिचुएशन. सो देन Gaurangadas is telling us four rules of happiness. Are you able to see my screen? Yes. All right. Now we are learning about the four simple rule of happiness. So first is free your heart from hatred and forgive. This is one of the very important virtues, not for others but for us. We often think that we are forgiving someone and we are doing something great deed on them, but actually forgiveness, as always said by gurus as well, that it is for us. हम मुक्त होते हैं उस बंधन से, उस भार से, and it is for us to release that so-called burden, and it actually emancipates us. So forgiveness, then free your mind from worries because most of them don't happen. चिंता की चिता में न जले, तो that, then live happily and appreciate what you have. This is like gratitude, practicing gratitude every day for each and everything in our life, and give more. Expect less from people, but more from yourself. That is such a beautiful thing. Uh, I was reading one book, How to Be an Adult in a Relationship. So, the relationship of any sort. So, there also the author mentioned that you have to be uh, more giving and less expecting. Often we think that जो partner है या spouse है, उससे आप बहुत expect कर सकते हैं, and eventually it leads into discontent and obviously anger and relationship issues. So आप खुद से ज़्यादा उम्मीदें करें because you will not disappoint yourself. If you're being honest with yourself, usually it's that you will not disappoint yourself. Others obviously will because वो आपके expectations yes sir, वो आपके expectations पे शायद खरे ना उतरे. So this was the first chapter, and it was I would like to I would like to say more. So there is a shlok as well. Give me one. So the shlok says नेहा भी
क्रम नाशोस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमस्य स्वल्पप्यमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका मतलब Krishna is telling to Arjun that whenever we make an investment in the spiritual journey, it is never lost. So it is always with us. That is swa alpam api asya dharmasya trayate. So a little progress in the spiritual journey protects us with and from the greatest fear. So therefore we should uh, do Nam Jap and the journey of dedication and effort. So also the line that we do not have control over other people's responses and circumstances. So this is very nice and life. The author says that life presents two choices always. First, we accept reality and deal with it, or we surrender to reality, lose hope, and become a total nervous wreck. तो पहला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है चूज़ करने के लिए where we accept reality and deal with it. So often in life we are actually faced with this always two choices, either to surrender to that situation in life or to strive away and strive through that problem, and eventually when we pass through it sometimes we also feel कि ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना मैं उसको सोच सोच के बता रही थी. So I would like you all to answer, even in the comment section, it's fine. That was there any incidents in the near past, or you remember that where life posed you a lot, you thought it's a very big problem, but you strived through that and you maintained your calm and you accepted the situation and you won over that. So anyone would like to share ऐसी कोई परिस्थिति? Good morning, sir. All right. So there were a lot. There are so many situations. For example, मुझे बहुत easily अच्छे से याद आता है COVID time, and that was one of the biggest threatening situation. It was very sad, and we all powered through that. We all were demoralized, and it was bad for most of us, especially अगर घर में नहीं है तो बाहर है. So everyone was impacted, but we powered through. We were positive कि अच्छा समय ज़रूर आएगा and we will be normal and happy again. So I think uh, Nam Jap and spiritual journey usually helps us. It could be anything like strengthening your inner self. It could be meditation. It could be yoga, or it could be just bhakti. So I think it helps us a lot. Now the author is telling that how we should achieve and how what are the steps towards achievement. So basically ये story ये बता रही है कि आप किसी भी situation में अपना attitude क्या रखते हैं first of all, and then achievement कैसे करते हैं वो situations के साथ होने के बावजूद you passed through that fear of failure, and how then you power through that situation. So first, in the first part of the story and in the first part of the chapter, we were told how to brave through the fear of failure कि कैसे करें, and ऑल्सो द रूल्स ऑफ हैप्पीनेस कि फॉरगिव कर दो, एक्सपेक्ट मत करो, एंड अप्रिशिएट खुद का ग्रेटिट्यूड रखो. तो ये सब चीजें खुशी के लिए है, एंड ये खुशी आपको स्ट्रेंथ देती है ये फियर ऑफ फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट और बहुत सारी परिस्थितियों से पावर थ्रू करने के लिए. नाउ हाउ टू अचीव. तो अचीवमेंट के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं. सो पहला है स्किल. So you have to identify your skill. There are so many skills in our lives that actually are very nice, and we do it very effortlessly. There are a lot of things. For example, I would also like to say
आई राइट इट, राइटिंग मेरा स्किल है, वो एफर्टलेसली आता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बट राइटिंग इज नॉट माई प्रोफेशन. So sometimes your profession is not your skill, but still a little bit of skill that you have, you can then repeat it many times. जो हम बहुत बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी एक्टिविटीज में करते हैं, रिपीटिंग इट लाइक एवरी डे एंड प्रैक्टिसिंग इट एंड देन परफॉर्मिंग इट कंसिस्टेंटली. वही कि उसको रिपीट इतना करिए, और रिपीट ऐसा नहीं कि इनकंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आज बहुत बार कर लिया देन कल छोड़ दिया. कंसिस्टेंटली रेपिटेशन, एंड उसको धीरे धीरे करेक्ट करते जाओ. दैट इज कॉल्ड काइजन भी, जिसको बोला जाता है कि स्मॉल लिटिल बिट करेक्शंस एंड incremental corrections in the process, and then finally superlative achievement. So there are so many examples, but जैसे even Kamal sir, you also write very well, like I love your writing and everything. जो आपके poems रहते हैं, but it's not your profession. Your profession is yoga guru, and you didn't achieve this in one day. You also were extremely consistent, and बहुत मेहनत से आप इतने यहाँ तक इतना ज्ञान लिया है आपने. So I think we identify that skill of ours through through multiple things. जैसे आप कहते हैं कि योग ने मुझे चुना, मैंने योग को नहीं चुना. So you got to just have one spark that मुझे ये करना है, and then you strive for it. बहुत मेहनत करी आपने. So similarly, most of us, when we clear any exam, we also learn a lot, and we practice it, and then we give exams, and then finally if we are by God's grace we clear the exam. So such things we have to identify our skill. And I think बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि हमने हमारे बहुत सारे करियर्स पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चुने, जो हमें नहीं पता था कि हमारा स्किल है कि नहीं. मतलब हम सब इंजीनियर बन गए, and then after that we chose that अब क्या करना है. So yes, Sanjay sir, would you like to share? I think you are in the cab. I'm so happy to see you. Yes, please. Yeah, I now boarded into cab. No, it's good going. Sorry, I could not take it up, and thanks for taking it up. Yeah, beautifully explained. You may please continue. Yeah. All right. If you are, when you comes back stable, I would request your opinion also. Lastly, if possible. And wonderful slides, and what is sundar slides बनाई हैं. Thank you so much. So, as you are explaining about this superlative achievement, 5 steps जो गोरंगा दास जी ने इसमें explain की है, मतलब स्किल तो जो गॉड गिवन गिफ्ट, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, बट नहीं भी होता है उसको भी जो है प्रैक्टिस के थ्रू जो है वी कैन डेवलप इट. एंड नॉट ओनली प्रैक्टिस बट consistency is also very important. And with consistency is okay, but if it is done incorrectly, then there is no use. So there has to be right way, right path to do something. जैसे भी कमल सर योगा सिखाते हैं, कोई सीख रहा है और मान लो गलत तरह से सीख रहा है, तो वो मतलब कितना अच्छा सिखाएंगे, वो जो गलत तरीके से सीख रहा है वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा जो ये चाहते हैं. तो देयर हैज टू बी करेक्ट वे, and then we get the result. So this is what the 5 steps Goranga Das ji mentioned in that chapter. And then further slide mein he mentioned about three elements जो कि जरूरी है, वो इसी का ही has to be kind of unusual ability and exceptional zeal. And third one is आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो उसमें पेपर कीजिए. Capacity for perseverance. So when we are into any sort of activity or we are trying to achieve anything, there are definitely downs, ups and downs and all. So हमको अपने आप को उनको उसके लिए तैयार करना है. We have to endure ourselves to face those situations now. And once we are there, then definitely we'll be able to
achieve whatever we decide to do in life. So this is what they have, so Gauranga Das ji mentioned in this chapter, chapter 11. And जो श्लोक नंबर 40 जो इसमें मेंशन किया था, आई थिंक पहले की स्लाइड में आ गया है शायद वो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा उसका। देखिए श्लोक जो है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि जो भी जिस भी चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब उसका लिटरली मीनिंग तो ये है कि इस चीज की जो तुम शुरुआत कर रहे हो इसका कभी भी विपरीत फल नहीं मिलता है, प्रत्यवायो न विद्यते। अब वो यदि उसी श्लोक को हम लेंगे तो शायद हम सही से समझ नहीं पाएंगे किस चीज की बात कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा इसमें। तो उसका एक बैकग्राउंड में बताता हूँ कि श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 30 तक अर्जुन को वो बुद्धि योग या हम जो रियल नेचर ऑफ सोल उसके बारे में बता रहे थे। लाइक नैनम दहति पावक नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नत्वे वाहम जातु नासम न जायते मृत्यते, मतलब आत्मा का रियल स्वरूप उस तरह से। तो वो बेसिकली उसको तैयार कर रहे थे युद्ध के लिए, हम सब जानते हैं। और 31 से लेके 38 तक उसको क्षत्रिय धर्म के बारे में बता रहे थे कि तुम्हारा कर्तव्य तुमको ये करना है। So all along from 11 to 38, Lord Krishna was trying to make Arjuna in equanimity, समता में स्थापित रहो। और फिर इस श्लोक जो 40 थे, 40 जस्ट पहले 39 से वो 39 में वो बोलते हैं कि अब मैं तुमको ये सारी जो इक्विनिमिटी का प्रिंसिपल जो है कर्म योग के माध्यम से बताता हूँ, वो 39 में बोला। और 40th जो है दैट इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ कर्म योगा इन भगवत गीता। As such, we are more familiar with the verse number 47, which is कर्मण्यवादी का रस्ते, but actually start यहीं से ही हो गया था। तो उसमें वो यही बोलते हैं कि इक्विनिमिटी यदि हमने लाइफ में ले ली, जो कि हमने स्टोरी में जो एटीट्यूड की बात सुनी, जो एटीट्यूड जो हमको जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वही हमको सफलता की ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो यदि हमारा एटीट्यूड इक्विनिमस वाला रहे, जो कि योग का भी प्रिंसिपल है, कमल सर कई बार बोला है, कमल सर ने समत्वम योग उच्यते। तो यदि हम समता में रहें तो बहुत सारी चीजें जो है वो लाइफ में सरल हो जाती। तो इस श्लोक के माध्यम से भी जो है रियल मीनिंग है कि हम व्हाट एवर efforts on equanimity we have in life, it is never wasted। सकाम कर्म जो है वो तो फल मिलने के बाद में शायद वो समाप्त हो जाता है, बट जो हम चाहे अप्स एंड डाउन्स हो, इफ यू रिमेन इक्वेनिमस, इट रिमेन्स विद अस। इसका कभी प्रत्यवाय न विद्यते, कभी विपरीत फल नहीं मिलता है। थोड़ी सी भी हमने प्रोग्रेस की तो हम वो जीवन मरण के जो है चक्र से दूर हो जाते हैं। ये इसके मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक इस स्टोरी के साथ में। आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट यार, ये जो गधे की स्टोरी है एटीट्यूड वाला, ये यहाँ पे कैसे फिट बैठ रहा है। तो आई वाज लिटिल थिंकिंग अबाउट दिस। थैंक यू पलक जी। आई थिंक वी कैन मूव टू नेक्स्ट। Thank you so much, sir. Wonderfully explained and rightly so. मतलब it was due. I was really expecting कि आप आ जाएंगे and we will together continue with the session. So it's going on wonderfully. Thank you. And ये सच सही बात है। वो गधे की स्टोरी से कैसे बट आई थिंक वो एटीट्यूड वाला जो सिचुएशन था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द एटीट्यूड मेक्स अस विन और लूज द एंटायर सिचुएशन। So I think that is there. For example, I in so many things in life, like when I was in my office and I was preparing for something, and usually we are being shunned down. No, with due respect to all the people out there, थोड़ा सा एक women और young वाला सीन आता है जब जो upper bosses होते हैं, you they shun you down because of the because of your age and because of your gender. And then sometimes when I was young, I used to question myself कि maybe they are telling right. So that was the attitude I had. And then my parents told me कि ऐसा ऐसा नहीं है, skill define नहीं करता gender और हाँ तो फिर एज से तो then I got shifted in my attitude. So I always remember that now. Now if anyone tells me something, I shun them away. Like मैं उल्टा बोलती हूँ उनको कि
सर अभी तो आप अभी सीख रहे हैं, मेरा तो हो गया लाइक दैट, सो समटाइम्स I do that. So I think yes, very important lesson, and thank you so much, sir. Very beautifully explained, श्लोक. And this book, जब से आपने मुझे आपसे मिलने का मौका मिला and your connection with Bhagavad Gita and daily life, I really wanted you to have a community reading session, क्योंकि आप जितने अच्छे से बुक में रिलेट करते जा रहे हैं श्लोक से, आप खुद उतने अच्छे से बता देते हैं हमें. So it's wonderful skill that you have. Thank you. कमल सर All कुछ right. बोल रहे थे? Yes. नमस्ते संजय सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच पलक कि संजय सर के ना होने के बावजूद, मतलब ही इज देयर डेफिनेटली, बट ही इज ट्रैवलिंग, तो उसके बावजूद भी यू आर टेकिंग अप द सेशन सो वंडरफुली. जब आपने बात की थी वो स्टोरी की, गधे वाली स्टोरी की, एंड यू वर आस्किंग कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा टाइम जब टफ टाइम था और उससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप निकल आए हो, बिकॉज दैट वाज कोविड वाज फॉर एवरीवन, है ना. एक होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसको फेस किया एंड दैट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट कोविड वाज लाइक यूनिवर्सल. वो उस समय ऐसी चीज थी, जो महामारी बन गई थी, है ना. एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा. प्रियंका इज देयर, शी वाज आल्सो देयर. वी वर गोइंग टू चक्राता फॉर आवर योगा रिट्रीट, एंड मैं योगा रिट्रीट जनरली एक मई जून के आसपास करता हूँ और दूसरा नवंबर दिसंबर के आसपास करता हूँ. तो इट वाज अराउंड, हाँ, जून में था, 21 जून योगा डे पे हम वहाँ जा रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर. तो इट वाज रेनी सीजन एंड वहां पर चक्राता में इट वाज न्यूज कमिंग कि वहां पे कई दिनों से बारिश हो रही है और वहां पे एक टाइगर वाटरफॉल है, वहां पे ऊपर से पेड़ गिर गया था, तो दिल्ली की एक लेडी मर गई थी हमारे वहां जाने से पहले. तो सब बुकिंग हो चुकी थी और क्या होता है ना, नेगेटिव खबर ज्यादा तेज फैलती है. तो अब सब जो जा रहे थे देवर लाइक कि सर हम वहां जा रहे हैं, सब ठीक तो होगा ना सर, मौसम ठीक होगा ना. मैंने कहा देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, वेदर मेरे कंट्रोल में नहीं है. अभी वहां जाके मौसम कैसा होगा इवन आई डोंट नो, बट अपने यहाँ पॉजिटिव अपने आप रखो. बट आई वाज स्टैंडिंग प्रेइंग कि सब कुछ बढ़िया हो, सब अच्छे से जाए, अच्छे से वापस आ जाए. अब क्या हुआ, हम जिस बस में जा रहे थे इट वाज न्यू बस, बिल्कुल पन्नी चढ़ी हुई थी उसकी सीट्स पे भी, पूरा न्यू बस थी वो. एंड हम जब पहुंचने वाले थे उससे अराउंड मेरे ख्याल से 50 से किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी ऑन द वे खराब हो गई. पता नहीं उसमें क्या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, वो रुक गई, वो चली नहीं. और बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई. नाउ एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग, अरे यार सर हमने बोला था ना बारिश होगी, सर हमने कहा था ना, हमें तो पहले से ही लग रहा था ये है वो है. बट आई वाज स्टिल वेरी पॉजिटिव इन माय एटीट्यूड कि नहीं नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा. एंड when everyone was around like questioning कि अरे सर देखो मैंने कहा था ना बारिश हो जाएगी, अभी पता नहीं वहां पे कैसे होगा, कैसे करेंगे, मौसम कैसा रहेगा, गाड़ी भी खराब हो गई. एंड वी वर देयर फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स शायद प्रियंका, है ना. तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा रिजॉर्ट वाला बंदा था उसने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप उस गाड़ी में आ जाओ, जैसे मैसे करके पहुंच जाओ. तो मेरा ड्राइवर ही वाज वेरी हम्बल, तो ही सेड कि सर मेरी गलती नहीं, आपके सामने नई गाड़ी है, फॉल्ट तो पता नहीं इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्या आ गया और यहाँ पे लोकलाइज को पता भी नहीं लग रहा वो. तो उसके बाद उसने कहा कि आप पहुंचो, मैं गाड़ी ठीक करा के आ जाऊंगा. हमने कहा ठीक है हम निकलते हैं. हम पहुंचे, जब हम पहुंचे बारिश वहां रुक गई और उसी नाइट को वो हमारा ड्राइवर अपनी गाड़ी ठीक करा के ले आया. वी वर देयर फॉर 3 days एंड एक बूंद बारिश नहीं पड़ी, एक बूंद बारिश नहीं पड़ी. इतना प्लेजेंट वेदर रहा. वी सॉ कि मतलब जो क्लाउड्स हैं वो हमारे रिजॉर्ट के ऊपर से ऐसे निकल रहे हैं, सो ब्यूटीफुल इट वाज. तो वो 3 दिन बहुत बढ़िया है. एंड व्हेन वी स्टार्ट चेकिंग आउट, हम बस में बैठे हैं, चेकआउट के लिए सामान भी लोड कर दिया हमने, हम बस में बैठे एंड इट स्टार्ट रेनिंग. सो दैट वाज द सिचुएशन वेयर आई वाज वंडरिंग कि यार अभी इतना रेनी सीजन में मैं आ गया हूँ, मतलब आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ ऑल्सो. एक बार को जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी वहां पे मंदिर था, आई वेंट देयर, आई इनफैक्ट आई स्लेप्ट, मैं सो गया वहां पे पीछे चैंटिंग करते करते. एंड वी वर मतलब सब ढूंढ रहे कहाँ गए कमल सर, और पीछे आके मैं सो रहा था उनके लॉन में मंदिर के पीछे. तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए आपको हर सिचुएशन में, खासकर टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि सही नदी के भाव में हर कोई बहता है. जब नदी का भाव विपरीत होता है उस समय अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है. सो दैट वाज द स्टोरी की कीपिंग योरसेल्फ positive, especially in the tough time in your life, that is very very important, because you can't change the situations around you, but you can change the situation inside your mind.
और जब समत्वम योगा की बात करी सर ने तो दैट वाज लाइक वंडरफुल श्लोक, और वहीं से आई टुक द नेम फॉर माय योगा कम्युनिटी, समत्वम योगा। तो जब अर्जुन भी जैसा व्यक्ति जो इतना धनुर्धन कृष्ण भगवान के साथ रहने वाला स्ट्रेस में आ सकता है, तो हम तो किस खेत की मूली गाजर है ना जी। तो उसके बाद उन्होंने उनको ज्ञान दिया और तब बताया कि समता में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल योग एक्चुअली। हम जो योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम, दीज आर द वेरी लाइक प्रिपरेशन, a very small part of that ocean, few drops, but वो असली में पूरा माइंड का खेल है। और हम जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं, आज भी हम जो पढ़ रहे हैं, पलक जैसे बता रही है, तो सब हैप्पीनेस भी के अंदर है ना। अपने अब अपने आप को चेंज कर सकते हो, तो पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते, आपका पार्टनर आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, यू कैंट चेंज देम, लेकिन यू कैन शो अप हाउ यू आर बिहेविंग विद दैट पर्सन। दिस इज योर वैल्यू सिस्टम, एंड द वैल्यू सिस्टम यू आर इम्बाइबिंग इन योरसेल्फ, यू कांट एक्सपेक्ट सेम थिंग इन योर पार्टनर। तो आप अपने वैल्यूज पे स्टिक रहिए, स्टिक मीन अगर सही वैल्यूज पे आप रहिए, आपकी अगर पॉजिटिविटी है तो आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते जरूर है अपनी पॉजिटिविटी से दूसरी तरफ। तो दैट्स कॉल्ड द लाइक माइंडेड। हम टीबीएफ इसी कम्युनिटी से ही बना, ऐसे ही बना ना, ये लाइक माइंडेड लोग आए आपस में। और गुड न्यूज, बलराम का लड़का हुआ ये। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. All right. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you so much, Kamal sir. So, I think beautiful discussions and holistic discussion जो सब कुछ I think समझ आया होगा. So, with that we will move on to the next chapter, that is who can escape the chase. And I think the chase is जीवन मरण वाला chase. I don't know. Okay. So, the story goes like this: that a tiger is chasing a cow, and they run to in meadows and water and everywhere. And eventually, cow found the solace कि वो pond में जाके कूद जाती है. And that is not a pond; it's a quicksand. And tiger also follows, so they both are in a quicksand now. And now they are about to drown. So then cow is asking tiger ki who is your master. So tiger is telling, you are asking the master of the world who is your master. What a stupid question. So she says that ki you don't have a master, but I have my master, and as the day will progress and it will get evening, my master will come and look for me, but not yours, and eventually he will take me out from the quicksand. That only happens finally when evening happens and he is in search of his cow for the herd, and the evening going home, he sees the cow and he pulls him back from the quicksand. So here the master is obviously our guru, and how he pulls us back from the situations of life, the quicksands of life, and how we are able to surrender to him, and how we are not the egoistic mind. The egoistic mind is connected to like the tiger. तो टाइगर को लगता है कि उससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, सर्वोपरि सर्वगुण है वो, बट वो ही मास्टर है. बट एवरीवन हैज अ मास्टर, हमसे कोई बड़ा जरूर होता है. नाउ आफ्टर दैट एंड दैट इज वी आर ऑल लाइक ही इज टेलिंग कि हम साइकिल में ट्रैप्ड है और वो साइकिल से हमें गुरु निकालेंगे. So the conditioned mind traps us within the chase of material world of Adidaivik, Adibhautik and Adhyatmik, so caused by natural disturbances, other living entities, and caused by our body and mind. Or this is the cycle of repeated birth and death, that is a quicksand. And उससे बाहर हमें हमेशा गुरु निकालते हैं. This is actually indicative of a spiritual guru, not a material guru. So the Chaitanya Charitamrita में लिखा है कि भावंतम एवानुचरण निरंतरः प्रसन्त निःशेष मनो रथांतरः कदहम ऐकांतिका नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि सा नथा जीवात्मा. मतलब कि सोल के एक इटर्नल मास्टर हैं जो कि कृष्ण है, एंड उनके सर्विस पे, उनकी भक्ति पे, उनकी लोटस फीट पे फाइनली वी विल फाइंड द शेल्टर. सो इवेंचुअली द अल्टीमेट मास्टर इज द ultimate spiritual guru is Lord Krishna. Anything it could be, or it could not just be Lord Krishna, but
ईश्वर के चरणों में जो है आखिरी गुरु वही है हमारे। एंड यस, would you like to share, Sanjay sir? I think you are in network. Yes, so this is a very beautiful story, and as you rightly explained, तो टू चॉइसेस है हमारे पास में लाइफ में। या तो हम अपने जो इगोइस्टिक माइंड के हिसाब से काम करें, या हम सरेंडर कर दें व्हेन वी आर ट्रैप्ड इन सर्टेन सिचुएशंस, व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। दैट्स द मेन मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी। जो जैसे कि गाय ने बोला कि तुम जो है, तुम्हारा कोई मास्टर है क्या? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो खुद ही मास्टर हूँ, मेरा क्या मास्टर होगा। तो गाय बोलती है कि मेरा मास्टर आएगा, अभी मुझे छुड़ा के लेके जाएगा। तो वो देखो थोड़ी देर बाद में ढूंढता ढूंढता आता है और उसको ले जाता है। टाइगर जो है वहीं पर ही हो जाता है दफन उसी। तो इसीलिए ऐसे काफी सारी चीजें हमारे लाइफ में हमारे साथ में होती है कि we may think okay we are capable, we have all skill set and everything, but we are helpless। ऐसी सिचुएशन कई बार आ सकती है। इन सब सिचुएशन के दौरान जो है we have only one choice, that we surrender to higher powers। तो इसमें इस चैप्टर में जैसे कि आगे गौरंगा दास जी बोलते हैं कि there should be some qualities of spiritual master। तो क्वालिटीज तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी, बट आई वाज रिफ्लेक्टिंग दैट it is not necessary that we should have a physical master in this era, in current era। it's very difficult। जो भी उन्होंने क्वालिटीज के हिसाब से जो बोला है कि भाई वो वेल वर्स्ड होना चाहिए स्क्रिप्चर्स में, और मॉरल कंडक्ट उनका ऐसा होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड ऑल वेल रिटन थिंग्स। सो जरूरी नहीं है कि हमको फिजिकल मास्टर ही मिले। जो कि अभी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, पहले रहे हैं, उनकी शिक्षाओं से हम यदि मान लो प्रेरित हैं, तो हम उनको भी मास्टर मान सकते हैं, उनको गुरु मान सकते हैं, मेंटर मान सकते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए लाइफ में। दिस इज व्हाट द मेन मैसेज कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट वी शुड हैव वन मेंटर, मास्टर, गुरु, whether physically available or not available, maybe in the form of nature, maybe in the form of books, maybe in the form of the person was available earlier, now not available, we can make that। So that's the message I got from this। Yeah, thank you। Wonderful, sir. Thank you so much. I totally agree with you. There are circumstances in life where we might feel that this person is our guru. We feel कि वो बहुत अच्छा है, but actually आपको आपकी बुक्स या जो हायर पावर है उन्हीं से एज अ गुरु कनेक्ट हो आप तो बेटर होता है। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन माय लाइफ where I expected a guru to behave like a guru, but that guru did not behave like a guru. So eventually we understood कि जो ऊपर है वो ही आपके आपके गुरु है। So there are for example, I worship Gajanan Maharaj, so he is our spiritual guru, and he was there in 1800s, and we study his scripture, whatever he tells. And there is one beautiful line. It's called Annam Brahmeti। So the first thing what he did was वो जूठे पत्तलों में से खाना खा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि जो आपने छोड़ा है वो भी ब्रह्म ही है। So yes, so that principle जो है वो हमें बचपन से सिखाया गया है। लाइक हमें जब जैसे ही हम कुछ खाना छोड़ने वाले होते हैं बचपन से, माय डैड स्टार्ट यूज्ड टू टेल कि अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति। सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स एक्चुअली रेजोनेट और वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ जाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर योर गुरु जो आपको सही रास्ता बता रहे हैं। and in nowadays you cannot trust, स्पेशली ह्यूमन फॉर्म में आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो आपको कुछ अच्छा निर्देश दे सकते हैं। इससे बेटर जो स्क्रिप्चर्स हैं तो किसी भी चीज के आई फील कि वो ज्यादा अच्छे से ज्ञान दे देते हैं। एंड इवेंचुअली वी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। इवन दिस बुक इट इज ऑल्सो लाइक अ स्क्रिप्चर, जैसे गुरु जैसे कोई हमें समझा रहा है छोटी छोटी स्टोरीज से लाइफ की बातें। So it's wonderful। Yes. Anyone else? Kamal sir, would you like to share?
And yes, we'll wind up with the slide and we'll discuss. ओके, Thank you so चलती much. रही एक तो। और दूसरी चीज अबाउट गुरु, तो मुझे भी यही चीज लगता है कि आज के समय में जो ह्यूमन फॉर्म में गुरु है, आप रिलाय नहीं कर सकते। नॉट बिकॉज योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स आर फॉलोइंग देम, शायद उनके जो गुरु रहे होंगे दे मस्ट हैव सम गुड एक्सपीरियंस, बट आज के समय में लाइक गुरुज आर आल्सो ऑन दैट सोशल मीडिया एंड दे आर, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं गुरु के रिलेटेड, मतलब मैं कहूँगा शायद प्रेमानंद जी महाराज उसके अंदर शायद एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज वो खुद नहीं चलाते हैं, ठीक है, वो खुद नहीं एक्सेस करते हैं, उनके जो मतलब शिष्य हैं वही सब कर रहे हैं। देयर कुड बी सो मेनी वंडरफुल गुरु, शायद हम सब उन तक एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है जो भी गुरु होगा, गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो इट कुड बी बुक्स, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी सम योर वेल विशर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप गुरु माना है तो आप उसकी मतलब डेफिनेटली जो स्पेशली जैसे गुरु पूजा में आप उसकी आरती उतार रहे हो, इट्स लाइक वर्शिपिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड अंडरस्टैंड that guru will always guide you to the right path and it will take you from darkness to the lightness. And if you found that person either in material world, physical form, or either in books or in any form, just go with that with surrender, क्योंकि यू नो, योर हार्ट नो, यू नो कि आपको वो कैसे हेल्प कर रहा है, कि आपको डार्कनेस से लाइटनेस में लेकर आ रहा है नहीं आ रहा, कि आपको सही राह दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, तो आप उनको गुरु मान सकते हैं। जैसे अभी मेरे जो एंसेस्टर्स, मतलब मेरे जो मम्मी, मतलब मेरे जो पापा जिनको गुरु मानते हैं, मतलब आई रिस्पेक्ट एवरीवन, ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि देखो कोई भी गलत तो आपको वो देता नहीं है, लेकिन एक होता है ना, मैं हमेशा वाइब्रेशंस की बात करता हूँ, मुझे वाइब नहीं आती कि हाँ यार ठीक है आप गुरु हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई ग्रजेस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई मीन अब शायद मेरी भी गलती होगी, मैं जाके बैठता नहीं उनके पास, मतलब डेफिनेटली हर गुरु के पास कोई ना कोई ज्ञान है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई गुरु है और वो मेरी हेल्प, मतलब मुझे उससे हेल्प मिल रही है उसकी शिक्षाओं से, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा हूँ, या मैं सही और गलत में अंतर समझ पा रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए गुरु होगा। तो बिल्कुल सही बोला संजय जी ने, पलक ने, कि इट कुड बी योर बुक्स, इट कुड बी एनीवन। और अभी तो बाबा राम रहीम और आसा राम जी और पता नहीं ऐसे केसेस देखकर तो लगता है कि भैया जय श्री राम। थैंक यू। Agreed. गुरु कैन बी मेनी, लाइक ऐसा कहते हैं कि भगवान दत्त के 40 गुरु थे, so anyone who teaches you something it is your guru. So yeah, it's और we should be grateful. Yes. हाँ, और इनफैक्ट मैं अभी लिखा भी था मैंने मैसेज में कि जो सिख धर्म है उसके अंदर जैसे पहले गुरु चले आ रहे थे, तो जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि भैया अब से ना ये ग्रंथ को ही गुरु मानिए, ठीक है, इसमें जो भी आपको शिक्षाएं दी गई हैं इन्हीं को ही गुरु मानिए, किसी फिजिकल फॉर्म का गुरु मत मानिए। तो वहां पे जैसे तो गुरु माने हो ग्रंथ, अब यही आपके गुरु हैं। तो फिर एवरीवन इज बोर्डाइन टू, इवन कोई भी रिलीजन जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब के आगे, किसी फिजिकल फॉर्म के आगे मत्था नहीं टेकते। तो हमेशा इस चीज ध्यान रखना है कि कौन सी चीज सही है, ऑथेंटिक है, वही आपके गुरु है। यस, गुरु कैन बी सो मैनी। Wonderful. And let's take a selfie. And I would request that और आप लोग discuss करें, few more of us can join, because it's a community reading session where we can chime in our views and thoughts. Beautiful chapters today, attitude and the power of guru. So yes, I would request everyone to turn on their cameras. We are at the last leg of our session. So Priyanka ji, good morning. Hi Priyanka ji, good morning. Hello Sandy ji, Akash ji, hi Jagriti ji. All right. So ready everyone? Smile. Thank you so much. Beautiful. So yes, anyone else? Sandy ji, Priyanka ji, कुछ कहना चाहेंगे? Good morning, Akash ji.
Santi ji, would you like to share? Yeah, I joined in the midway actually, and ये बुक जब स्टार्ट हुआ तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था संडे। So I have read a few books on habit making और the power of habit पढ़ा, atomic habits तो फिर सबने पढ़ा है। So सभी बुक में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये वाला जो बुक है, जैसा मैंने अभी इसका कवर पेज देखा कि 40 स्टोरीज के थ्रू गौरंगा दास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा मानना है ना कि कोई भी हैबिट जो होता है, इनर कैरेक्टर, कॉन्शियसनेस और वैल्यू, इन तीनों को मिलाकर ही चलता है। अगर इस तीनों में से कुछ भी मिस हो जाता है तो फिर हम उस हैबिट पे स्टक नहीं हो पाते। तो यस, अगेन एक्चुअली ट्रू सस्टेनेबिलिटी जो है इन हैबिट्स कम्स फ्रॉम द इनर स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और इमोशनल अलाइनमेंट उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने सोच दिया कि ये हम कल से चालू करेंगे और वो हो जाए, तो उसके पीछे फिर हमें कंसिस्टेंसी और इमोशनल अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों मेरे लिए, दूसरे कोई एग्जांपल्स देते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, इंस्टाग्राम भी खोलने के बाद भी सी ना, ये 3 बातें दिमाग में बिठा लो। अलग अलग तरह के ना आजकल ज्ञान वाले इंस्टाग्राम रील्स चलते हैं और हम वो 3 बातें पढ़ ली और 3 बातों को फॉलो करने की कोशिश करने लगे, बट वो 3 में से एक ऐसा बात है जिसका मेरे से इमोशनल अलाइनमेंट है ही नहीं, तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। तो वी हैव टू डिसाइड बेसिस आवर रूटीन एंड ऑल कि हमें क्या चाहिए, एंड देन वी नीड टू फोकस ऑन दोज प्लान्स एंड एवरीथिंग। तो मेरा ये मानना है, और इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ना पलक जी। It's a kind of self-help मैं through थोड़ा Bhagavad इस वाले Gita. राइट, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन संजय जी, पलक जी को। कमल जी ऑल्सो गिव lot of beautiful and practical insights to the subject, so really helpful. Thank you. Thank you, Santi ji. सब प्रो है यहाँ पे पढ़ाने में। एंड मैं गौरंगा दास जी जहाँ बैठते हैं ना, यहाँ पे इस्कॉन चौपाटी जस्ट मेरे घर के रोड के उस पार है। एंड इवनिंग सेशंस आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन बिकॉज मेरा जो टाइमिंग है ना 8:30 पौने 9 का, मैं ऑफिस से आता हूँ और बैग रख के ना आई गो देयर ओनली। सो मेरा 1 घंटा वहाँ पे बीतता है इन चैंटिंग्स एंड लिसनिंग टू वेरियस थिंग्स वहाँ पे। सो आई हैव बीन एबल टू मीट गौर गोपाल दास जी, वो भी यहीं पे बैठते हैं, हालांकि वो रहते नहीं हैं। तो वन मॉर्निंग, फाइन मॉर्निंग, मैं सुबह 7:30 बजे गया था, तो ही वॉज वॉकिंग थ्रू एंड थोड़ा सा मीट एंड ग्रीट हुआ हल्का सा। सो दिस इस्कॉन इज यहाँ से मीन्स यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग महामंत्रा ना, यहाँ पे लॉट ऑफ विजडम शेयरिंग सेशंस होते रहते हैं, और यही कारण है कि बड़े बड़े लोग जो ऑथर्स हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कॉरपोरेट को लिंक करते हैं गीता विजडम से, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो दिस एक्चुअली आई एम फीलिंग लकी टू बी देयर ऑलवेज एंड कनेक्टेड। अभी घर के पास है, जब तक मैं इस एरिया में रह रहा हूँ, सो आई ट्राई टू अचीव एंड लर्न मोर एंड मोर थ्रू दिस पर्सनालिटीज़। अगर कभी ये लोग खुद मिलें या फिर इनके जो डिसिपल्स हैं वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, 2-4 डिसिपल से तो मेरी हमेशा वो रहती है। सो यस, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू दिस ग्रुप ऑल्सो दैट कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है लाइफ में। फीलिंग ग्रेटफुल टुडे। सेंटी जी की बात से आई कुड कोरिलेट, मीन्स जब व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस बुक 40 स्टोरीज के जरिए आपके हार्ट और माइंड को, मतलब उसका जो टाइटल ये बोलता है कि उसको चेंज करने का, तो हमारा जीवन की जो शुरुआत, बचपन की जो शुरुआत होती है वो स्टोरीज से होती है। बीच में कहीं जो है हम कहानियां भूल जाते हैं। आई थिंक हम एक उम्र के अभी इस पड़ाव पे हैं कि कहानियों का दौर वापस हमारे जीवन में आना चाहिए, उसी के थ्रू जो है हम काफी चीज हासिल कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी जो है, थ्योरी तो काफी
चल रही है, बट ये इस बुक में जो कहानियों के माध्यम से जो शिक्षाएं दी गई है, आई थिंक दोज आर अमेजिंग। एंड वो क्या है कि उसको इंटरलाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और हम उसको ज्यादा समय तक मेमोराइज और प्रैक्टिकल रूप में उसको अप्लाई भी कर पाते हैं। सो सेंटी जी ने बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा, गोरंगा दास जी जो है वो आपको मालूम होगा, जो ये गोवर्धन इको विलेज है, आई थिंक अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, इज डायरेक्टर ऑफ दैट फैसिलिटी। I've been there 3 times and stayed there. Whenever you have time, visit that facility. It's lush green, surrounded by mountains, beautiful atmosphere. और इसको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भी अवार्ड किया है 2017 में दैट फैसिलिटी को। सो वेदर यू आर एफिलेटेड विद ISKCON or not, irrespective of that, you can visit that facility. Even only thing is that you do not get accommodation on weekends unless until you do in advance. Maybe 1 month in or 2 months in advance you have to book. वो थोड़ा सा एक चैलेंज है। So whenever I visited, I tried like on Thursday or Friday. So Senti ji, whenever you have time, please have a visit. And I met Goranga Das ji in that in Govardhan Eco Village only. Most of the time spent there. Yeah, it's in Palghar area in Maharashtra. Yeah, So it's near Palghar. it's in my mind. You had suggested earlier also. You and the lady. Thank you. Over to you, Palak ji. Wow. Amazing, Akash. Wonderful discussions, Santi ji and संजय सर। सो yes, सांटी जी आप तो शायद ऐसा गुरु को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, द राइटर ऑफ द बुक, सो वंडरफुल। एंड द लर्निंग्स ऑफ द बुक एक्चुअली आर लाइक अ गुरु, मतलब वो छोटी स्टोरीज में आपको समझा के दे आर कन्विंसिंग एंड दे आर टेलिंग यू व्हाट इज राइट, सो इट्स ग्रेट। एंड यस, आई हैव अ क्विज फॉर दिस बुक, these chapters. कमल सर को याद होगा, we used to take quizzes. So अभी मेरे पास बनी हुई है, तो मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ वो क्विज सबके लिए। एंड इट्स वेरी नाइस, बहुत फनी सी है। आई हैव रिप्लेस द नेम्स। कमल सर, अगर आप इफ यू नो यू नो। So yes sir, when we did this book for the first time, Shungeri and I curated quizzes for it, so that yes, so true, so that we are reading. यूजुअली क्या होता है, एक दिन पहले पढ़ते हैं हम, एंड मैंने तो सच में कुछ घंटे पहले ही पढ़ी है बुक, तो यस लाइक दैट, सो आई थिंक यू लाइक द क्विज। एंड टुनाइट at 7:30 p.m. we have Gita session by Anand sir, and don't forget to join. And tomorrow at 8:30 p.m. ऋचा जी के शिव सूत्र रहेंगे, तो वो 8 to 14 रहेंगे, so she is taking 7 sutras every week. So yes, thank you so much, and with that we'll come to the end of this session. Thank you so much Sanjay sir for the support and presentation. Wonderful presentation and wonderful discussions everyone, and thank you so much everyone for joining. Bye bye.